कैसे हो आप सब? हैप्पी नवरात्रि एंड जय माँ कालरात्रि. In today's class, we are going to discuss one very important questions from the chapter real numbers, and this question carries 3 marks in your board exam. So let us see. Try to add 3 marks in your life from today's video. So the question is that all of you must be familiar with this question. The question is proof that root 5 is irrational. Just after this video, turn few pages of PYQ, previous year questions, and see in most of the cases, even in a standard or basic both section, such type of questions are asked. Either root 3, root 5, root 7, like that. Any irrational number is given and you have to prove this. So let us try to learn how to prove this in easy and accurate way. Okay. So let us see. If we have to prove such type of questions, what we used to do is that we used to assume or we used to suppose contradiction. Means if we have to prove that root 5 is irrational, then what we will do? We will suppose that root 5 is rational number. Okay. So here similarly also we have taken here root 5. So what you have to do? You have to suppose just opposite, which you have to prove. So if we have to prove that root 5 is irrational, then what we will do? We will suppose that root 5 is rational number. If this is rational number, then it will satisfy the definition or characteristics or properties of rational number. Means root 5 is equal to a by b, where a and b are co-prime integers. Dear children, please listen and pay attention. This one, co-prime integers, and q is not equal to 0. Don't forget to mention this about the condition of a and b, especially when you are proving such type of questions, such type of numbers. Okay. So again, just note it. What you have to write about the a and b? A and b are co-prime integers. किस तरीके का इंटीजर है ये? Co-prime integers, and also mistake is there. B is not equal to 0. Here instead of q, b is written. So b is not equal to 0. Now let us see. Just remember which type of integers are called co-prime integers. Co-prime integers are such type of integers which HCF is equal to what? 1. मतलब इन दोनों दो इंटीजर को प्राइम कब कहलाएगा? जब उसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा. ठीक है. मतलब ए और के बीच में 1 को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा. ये आपको एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, लर्न कर लेना है कि जैसे ही आप लिखते हो कि ये रेशनल नंबर है तो इसको आप मेंशन करो कि ए एंड ए ऑप्शनल नहीं है, ए कंपलसरी है. ठीक है. स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं. ठीक है. तो आपको यहाँ ये मेंशन करना होगा. अब देखिए, यहीं से देखिए को प्राइम इंटीजर जब हम लेते हैं तो फिर हम वहां आगे चल के आपको जब मैं प्रूफ करूंगी तो इसका यूटिलाइजेशन कैसे प्रूफ करने में होता है वो आप देखोगे. तो चलिए हमने क्या लिया? रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, ये लिए थे ना. अब देखिए यहां से यदि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? बी रूट 5, कुछ नहीं किया है, यहाँ रूट 5 मीन्स रूट 5 बाई 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने. तो रूट 5 इंटू बी, बी रूट 5 इज इक्वल टू व्हाट? ए. हमने कुछ नहीं किया. क्या किया? जो रेशनल नंबर लिया था उसको यहाँ से सिंप्लीफाई किया जस्ट आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ से अब देखिए, अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है. ब्रैकेट में या तो आप पहले मेंशन कर दो या फिर ब्रैकेट में लिख दो. क्या लिखोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड. अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. ठीक है. तो ये बी स्क्वायर इंटू 5 को हम लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर.
अब हमें क्या मिल गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1। देखो यहाँ से कुछ नहीं, जब पहले अभी तक आप लर्न कर लो, मैं बार बार बोल रही हूँ कि चीजें क्या होती है, लगता है कि यस आई कैन डू, लेकिन वेन एवर यू आर, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इन प्रॉपर वे और राइटिंग इन प्रॉपर वे, यू आर नॉट गेटिंग 3 मार्क्स और होल नंबर जितना ऐसा है पूरा कंप्लीट नंबर आपको मिलता नहीं, और आपका तो टीचर ने नंबर काट लिया। तो आपको क्या करना होता है कि पूरे अच्छे तरीके से लिखना होता है, ठीक है, स्टेप वाइज हर चीजों को अच्छे से मेंशन करो ताकि कोई आपका नंबर कट न कर सके, ठीक है। तो यहाँ तो आप पहले कुछ नहीं, यहाँ तक हमने क्या किया आप देख लो, पहले आपने इसको रेशनल नंबर का डेफिनेशन देके लिख लिया, इसी को लेके चले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, यहाँ से ये मिला, दोनों तरफ स्क्वायर किए, स्क्वायर करने के बाद हमको मिल गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है ना? सो एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन। अब देखिए थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो मैं ऊपर का इरेज करती हूँ और आगे देखती हूँ, ठीक है, आप इसको देखो और लिखो। अब देखिए यहाँ से आप एक थ्योरम पढ़े हो, थ्योरम 1.3, उसमें क्या था कि इफ p स्क्वायर डिवाइड्स एनी नंबर देन p आल्सो डिवाइड दैट नंबर। तो यहाँ से हम थ्योरम 1.3 से क्या कर सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि a स्क्वायर, कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर यदि नंबर से डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर भी उससे डिविजिबल, वो उसका स्क्वायर भी उससे डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है ना, तो a स्क्वायर यदि 5 से डिविजिबल है तो यहाँ से आप कंक्लूड क्या कर सकते हो कि a भी 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ इसको लेकिन मेंशन करना होगा आपको, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय व्हाट, बाय 5। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब आपको हमेशा एट एवरी स्टेप, एट ईच स्टेप यू हैव टू मेंशन व्हाई यू आर राइटिंग दिस। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम 1.3 विथ p इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए जब a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो थ्योरम में आप क्या पढ़े थे कि a भी क्या होगा, a डिविजिबल होगा किससे, 5 से। यहाँ पे बाय लिख दीजिए, बाय छूटा हुआ, बाय लिख देते हैं, बाय छूट गया था ना। ये कंसेप्ट दोनों के लिए हो गया, ठीक है। तो अब जब इससे डिविजिबल है तो हम इसको सपोज कर सकते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 5c, अगर डिविजिबल है। देखो ध्यान दो, थोड़ा सा कंसेप्ट, चीजों को लॉजिकली समझो। अब कुछ बच्चे बोलते हैं क्यों यहाँ से लिख दिया, देखो यार जब ये a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है, इसका मतलब कि a जो है कि 5 के मल्टीपल में होगा ना, अगर डिविजिबल है तो यहाँ पे क्या c क्या होगा, 4 सम इंटीजर c, 4 सम इंटीजर c, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सा इसका मल्टीपल है तो हमने सपोज कर लिया इस तरीके से। अब देखिए इसको पहला माना था आपने, अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब देखो क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब a की वैल्यू सेकंड से हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो यहां से लिखो आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या हमको मिलता है, यहाँ पे देखिए सेकंड में मतलब a की वैल्यू हम यहाँ से फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो LHS में क्या था 5b स्क्वायर, हमने 5b स्क्वायर लिख लिया इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a के बदले में क्या लिखेंगे 5c का स्क्वायर, ठीक है। क्या किया, कुछ नहीं, a की वैल्यू सेकंड से लेके फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या हो, थोड़ा सा और इरेज करती हूँ बिकॉज वी नीड सम स्पेस ना। देख जब भी आप देखो होता क्या है, आप बोलते हो आपको पता है, टीचर को भी सबको पता है कि आपको पता है, लेकिन ओरल के नंबर आपको नहीं रिटन एग्जाम मिलते हैं, लिखने के सही सही लिखने के मिलते हैं। तो यू हैव टू मेंशन एज ईच एंड एवरी स्टेप व्हाई दिस इज, दैट्स व्हाई हियर आई हैव रिटन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, राइट।
तो यहाँ पे अब हम ये कर दिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25, c का स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर। क्लियर, नथिंग आई हैव डन, जस्ट इसका स्क्वायर हमने लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये 5 और ये 5 करके यहाँ 5 टाइम्स में कटेगा ना, तो यहाँ क्या बच गया b स्क्वायर बच गया इज इक्वल टू क्या बच गया 5c स्क्वायर। देख लो अब हमें क्या बचा, इसको मैं इरेज करके इसका काम हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो बच गया वो क्या बच गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अच्छा, अब फिर जो है कि यहां से आप चीजों को देख सकते हो, पहले क्या था, यहां से आप क्या कर सकते हैं कि b स्क्वायर, फिर उस थ्योरम पे कहां पे आना, थ्योरम पे, कौन सा थ्योरम 1.3। ठीक है, 1.3 थ्योरम जो कहता है कि अगर b स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो b भी उससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहां से हम इंप्लाई कर सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल, जो ये चीज आप यहाँ लिखे थे उसी चीज को यहाँ लिखना है फिर से, डिविजिबल बाय व्हाट, बाय 5, दिस प्राइम नंबर बाय 5। तो क्या होगा, थ्योरम क्या कहता है कि यदि b स्क्वायर डिविजिबल है तो b भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय व्हाट, बाय 5। अब फिर से डोंट फॉरगेट, यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू मेंशन। ठीक है, बाय यूजिंग बाय थ्योरम, बाय थ्योरम और बाय यूजिंग थ्योरम 1.3 विथ p की वैल्यू यहाँ क्या है, p इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो फिर से देखो, यहाँ पे जो चीज आप निकाले थे सेकंड में, इसको आप नंबर दे दो। सेकंड में आप यहाँ पे निकाले थे ना, सेकंड में आप यहाँ पे निकाले थे कि a इज डिविजिबल बाय 5, जस्ट सेकंड के ऊपर में a इज डिविजिबल बाय 5, और यहाँ क्या निकाल रहे हो, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देखो पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को देखो आप ध्यान से, थोड़ा सा चीजों को देखो। यहाँ पे लिखा है a इज डिविजिबल बाय 5 और यहाँ पे आपने लिखा कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देख रहे हो ना, इसका मतलब a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। तो क्या हुआ, 5a और b का क्या है, कॉमन फैक्टर है, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इसको मान लीजिए आप कोई नंबर भी दे सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई पहले नंबर नहीं दिया था तो a दे दीजिए, इसको b दे दीजिए, आप पहले नंबरिंग भी कर सकते थे। तो फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b आपको क्या मिल रहा है कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। ठीक है, इस चीज को हम लिख लेते हैं। देखो आप ध्यान दो, अभी मैं इरेज करूंगी, a 5 जो है a का भी फैक्टर है और 5 b का भी फैक्टर है। तो हम लोग इस चीज को लिखने जा रहे हैं कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ। ओके, सो 5 इज ए क्या, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ, किसका, a एंड b, a एंड b। कहां से मिला, फ्रॉम a एंड b। ठीक है, a रेस क्या और b ये था। लेकिन अब ध्यान दो, जब आप सपोज किए थे कि √5 इज ए रेशनल नंबर विच इज इक्वल टू a बाई b, तो a और b को आपने में अंडरलाइन भी की थी वहां पर, अगर आपको याद होगा कि a और b क्या था, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर उसका HCF क्या होगा 1, मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। लेकिन यहाँ पे जब आप कॉमन पॉइंट पे आ रहे हो तो आप 5 एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो ये क्या कंट्राडिक्शन है, तो ये क्या है, दिस कंट्राडिक्स, क्या कंट्राडिक्स कर रहा है, दिस कंट्राडिक्स दैट a and b are co-prime number, co-prime number। इसी का कंट्राडिक्शन कर रहा है क्योंकि
आपने स्टार्टिंग में सपोज किया था कि ए और बी को प्राइम है, और यहाँ पे आप देख रहे हो को प्राइम मतलब उसका